Yes, Right. sir. This was test 4, right? Right, test 4. The first question, the alphabet of our language consists of two of the letter A and B, right? Two words have the same meaning if one can be constructed from the other by replacing double A by A and double B by B, and ABA will be replaced as BAB, right? Right, it's given like. Then you have to write down the 7 day, right? 7 days, how is like, is this possible to write it down all the 7 days or not? That we have to see. Okay. So please proceed. Who is going to do this? So, sir, I found like some forms which like you cannot, it's like irreducible, which means like it's some of the simplest. So then like you cannot write A into something shorter. You cannot write B into something shorter than itself. Okay. And A, B, B, A, and you cannot also write B, A, B into something shorter. Okay. So what is the meaning of this? Like how to create this thing? Like we have to just see exactly is this possible or not. So like you are saying it's not possible. Or Yeah, okay. that's not possible. Okay. Okay. Any other opinion, any other thought process? Zeel, Aryan, Nuska, Dhaval, Prasan, Om, Vaishnavi, Vijay. See. So we have to write down 7 days, right? Day one, this is simplest way if I'm going. So I'm saying like first is A, second is B, third is AB, possible, right? We can write. Fourth is BA, that's also possible. Fifth is, Yeah. right, ABA, right? Now, suggest the sixth one. What I can write for sixth one? I'm writing AA if I'm starting with 2A, but we know that this 2A will be converted into A only. So I'm not able to write it down 2A's, right? If like I'm proceeding with BAA, what we can write for this? BAA. But this BAA is what? This 2A is A only, so this is only BA. Right? What if I'm writing BBA? Again, this BB is B only, so this is BA. So 7 days तो बहुत हो गए, मैं तो 5 के आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, 6 भी मेरे से नहीं हो, कुछ नहीं तो right? 6th day is not possible for this, right? मेरे 6 में ही हमेशा क्या हो रहा है कि वो प्रीवियस जो मेरे पास गिवन है मैं उसी पे लैंड कर जा रहा हूँ, नहीं? मेरे पास अगर डबल ए मैंने लिखा तो दिस इज ए ओनली, बी यार हम क्या कर रहे हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया। बी ए ओनली, बी बी ए, राइट? तो डबल बी इज बी ओनली, तो बी ए, राइट? तो पेपर डिस्कशन बेटा फ्राइडे है ना, फ्राइडे तो पेपर डिस्कशन। इससे लिखा तो टेस्ट 5 था ना? टेस्ट 4 था ना बेटा, ठीक है, आपने 5 लाइक जो नंबरिंग ये था, राइट? अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं लाइक बी ए बी बी, व्हाट यू थिंक क्या होनी चाहिए? बी बी फिर बी। B A is B only, right? So this will be B A B, and now and ABA is BAB, so they are equal. right? So this is nothing but ABA. So ये फिफ्थ वाले को मैच कर गया, तो मैं 1 स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं, 2 स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं, 3 स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं, 4 स्ट्रिंग भी मैं देख लिया पॉसिबल नहीं, तो 4 के बाद मेरा 5th स्ट्रिंग भी होगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो फॉर फर्स्ट वन not possible. Is this okay?
तो एक स्ट्रेटेजी बनानी थी कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन गो फॉर दिस, राइट। तो वैसे लॉजिकली देखा जाएगा तो ऐसा होगा, पर मैथमेटिकली इसका प्रूफ ये मैथमेटिकली तो किया आपने बेटा, अपने ये दिखाया कि No, हमारे if पास it's more, हमारे पास पॉसिबल केसेस जो हो सकते हैं, तो या तो 1 स्ट्रिंग का हो सकता है, या 2 स्ट्रिंग का हो सकता है, या 3 स्ट्रिंग के हो सकते हैं। तो हमने दिखाया कि 3 स्ट्रिंग के और कोई भी हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, एंड 3 स्ट्रिंग के ऊपर का 4 स्ट्रिंग जो है वो फिर से मुझे लैंड करवा दे रहा है या तो इस पे या 2 और 1 स्ट्रिंग पे। मतलब हमारे लिए कोई पॉसिबल नहीं है, एंड 4 स्ट्रिंग के ऊपर मैं जाऊंगा तो क्योंकि 2 ही वर्ड्स हैं, हमेशा मैं इसी जगह पर आ जाऊंगा, राइट। तो हमारे पास इसके अलावा पॉसिबल केस नहीं होंगे। इज दिस ओके? if there are like strings of more than 4 letters, then we can just take the first 4 letters of the string and simplify. Yes, exactly. Exactly. The same, that's the reason we have solved to 4. Okay. Okay, everyone. Now, Yes, sir. the next one. This was a good question. 1 by x is equals to 1 by y plus 1 by z. X, y, z are positive or negative integer. दोनों given है, right? Integer है, may be positive or may be negative, right? One number is of 1 digit, second number is of 2 digit, and third number is of 3 digit. 3 नंबर मेरे पास होने चाहिए, तीनों डिजिट्स के नंबर मेरे लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो नहीं है तो, राइट, फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव बोथ वी हैव टू टॉक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। विजय। सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं, आरव। सर, पर मेरे को इतना हिंट लगा था सर कि मुझसे नहीं हुआ था ये। ओके ओके, एनीवन एनीवन? अनुष्का, प्रसम, समिल? No, sir, I was also not. तो I tried making cases for this one, but okay, so first I have to start, like I'll start with the numbers are given, right? So these numbers are, one of the numbers are 1 digit, and the second is 2 digit, and third is 3 digit number. So this is given. The largest number on this case will be 1 by x. If I'm taking first case, x, y, z all are positive, right? To case first, I'm going for x, y, z all are positive integers, right? All are positive integers, right? So in this case, right, the number, I'm assuming this x, y, z as a, b, c are the positive one. So 1 by a, right, is one of the number, 1 digit number. 1 by b is 2 digit number, and 1 by c is 3 digit number. Right? Can I say this? Ki 1 by a is the sum of b and c. So this 1 by a is always greater than equal to 1 by 9, is greater than 1 by 10, and this is greater than equal to 1 by b greater than equal to 1 by 99, and this is greater than 1 by 100, and this is greater than or equal to 1 by c. Can I see this? Say this. 1 by a greater than equal to 1 by 9. Then second number, 1 by 9 obviously greater than 1 by 10. And this 1 by 10 is greater than equal to 1 by b. And this 1 by, like up to 1 by c. Is this okay? This is the like basic thing, all we know that. यहाँ पर you can see ये दोनों नंबर पे मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली 1 by 9 ऑल बी ग्रेटर देन 1 by 10,
एंड 1/b मैं 2 डिजिट के नंबर लिया जो कि 1/10 से 1/99 के बीच में होने चाहिए, एंड 1/c को मैंने लिया 3 डिजिट का नंबर, तो 1/100 से और नीचे जाने चाहिए, राइट? ये हमारे पास क्लियर है ये? इज दिस ओके? एंड दिस इज नथिंग बट 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। तो 1 डिजिट का नंबर कौन होगा? x वाले में होगा या y वाले में या z वाले में? क्या लगता है? x 1/x लार्जेस्ट है मेरा, तो x में ही जानी चाहिए मेरे को। वेरी गुड, राइट। तो अगर x में मेरा लार्जेस्ट नंबर है जिसमें मेरे को फ्रैक्शन को जाना चाहिए, राइट, सो दिस 1/9 ये हमारा जो होना चाहिए वो 1/9 जो हमारे पास नंबर है। अब 1 लाइक हमारे पास 1/y प्लस 1/z के लिए अगर मैं काम करूं, राइट, सेपरेट में, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास नंबर है this 1/9 is equal to 1/x, right, and that must be equal to 1/y plus 1/z less than equal to 1/10 plus मैं अगर मिनिमम भी लेके चलूं तो यही दोनों लेने होंगे 1/10 and 1/100। तो what is the value of 1/10 and 1/100? 11/100। Is this okay? यहां तक ठीक है? क्लियर है सबको? अब दो बातें आ गई। यहां पर आ रहा था 1/9 जो कि 1/x के इक्वल है, एंड यहां पर आ रहा था 1/y प्लस 1/z जो कि 11/100 के इक्वल है। अब इन दोनों के बारे में बात कर, राइट। क्या बोलूं मैं? हाँ, एक तरीका तो है कि मैं इन्हीं को कंपेयर कर लूं। तो मेरे को क्या हमेशा ये दिखाई दे रहा है कि 1/9 और 11/100 में कौन बड़ा होगा? 1/9. राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 1/9 क्या आता है? 0.1 बार, राइट, 1 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम, एंड ये मेरे को दिख रहा है केवल 2 बार 1, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 1 1 कई बार आ रहा है, तो ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए इससे। मतलब 1/x जो हमारे पास 1 डिजिट का नंबर था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, अगर मैं मिनिमम का केस भी ले रहा हूं तब भी ये ग्रेटर देन हमारे पास जा रहा है, एंड y/z का मैं मैक्सिमम का केस लेते हुए भी काम कर रहा हूं तब भी मेरे को 1/x हमेशा ग्रेटर देन मिलेगा। ये पॉजिटिव के लिए हमने काम कर लिया। इज दिस ओके? राइट, विजय, सिमिल, प्रसम, Yes, sir. सर I आप was able to do this step, but then I got confused what to do after. वेरी गुड, वेरी एक गुड। बार वापस बता सकते हो x को 1/9 क्यों लिया? 1/9 हाँ सर। 1 डिजिट नंबर ना बेटा। 1/9 से अगर मैं कोई भी और लेता हूँ, राइट, कोई भी और नंबर मैं लेता हूँ 1/9 के अलावे, राइट, 1 डिजिट नंबर है, 1/2 1/3 जो भी हमारे पास है वो नंबर तो और बड़ा चला जाएगा। हाँ हाँ। मैं तो उसको लोएस्ट करूँ ना, कि मैं बोलूँ कि कहीं एक बार तो दिख जाए ऐसा, yes, राइट। तो एक बार तो कहीं यहाँ पर फंसे, उसके लिए मैंने कहा कि चलो यहाँ पर एक बार वर्क करके देखते हैं। अब एक बात बताओ, ठीक है यहाँ तक? ओके एवरीवन, राइट। अब एक बात बताओ यहाँ पर कि अगर मैं XYZ के लिए काम कर रहा हूं तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव के लिए काम हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर X नेगेटिव होगा तो YZ पॉजिटिव, ये तो काम ही नहीं करेगा? फेयर इनफ ना? Yes, yes. X नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, दो पॉजिटिव पर सब नेगेटिव क्यों आ जाएगा, राइट। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बोलूं कि अगर YZ में कोई भी एक नेगेटिव है, YZ में कोई भी एक नेगेटिव है, तो नंबर्स तो और मेरे लेसर हो रहे हैं, तो वो 1/x के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या क्या केसेस कर लिया कि x नेगेटिव हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, YZ पॉजिटिव हो जाए, राइट, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। फर्स्ट हमने ये कर लिया। अब सेकंड, राइट, सेकंड क्या हो सकता है कि XY में एक नेगेटिव और ये दोनों को पॉजिटिव बोलना भी मैंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अगर मेरा एक भी नेगेटिव होगा तो दोनों का सम और लेस होगा जो कि हमारे मैच करने को और दूर ले जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है, जब तीनों नेगेटिव हो जाए तो मैं बोल रहा हूं कि ये तो वही केस है जो फर्स्ट केस था, ये तो वही केस है जो मेरा फर्स्ट केस था, मतलब किसी भी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगेन योर आंसर इज नॉट पॉसिबल। इज दिस ओके? स्ट्रेटेजी Sir, बना, हम लोगों को सीखना होगा बार बार। इस तरह के क्वेश्चन काफी अधिक आएंगे। यस प्लीज।
Sir, but was it like X is supposed to be one digit, or can X be a two digit or three digit one? Maybe X may be 2 digit or like maybe 3 digit, but we have already proved that if we are adding two things, if we are adding two numbers, right? So with addition, the number will be coming as a greater one, right? So if I'm saying ki this is 2 digit number or this is 1 digit and this is a 3 digit number, so we are not able to reach to this point. So we have rejected that case. So if we are adding two numbers and that will be greater, so this will be the single digit. Okay, 2 digit wale number that will reduce down the number itself. 3 digit again, this will reduce down number. See now, if you are taking 1 by 10 only, so this is 0.1 and this is 1 by 100 you are taking to this is 0.01. Right. So numbers are, and this is 1 by 9 we are taking. So this is coming as 0.1 bar. Right. So 2 digit number or 3 digit number with the division is going to be very, very, very less. That we have to counter. Okay. Okay, understood. Okay. Good, 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 good. Okay, everyone. Okay, everyone. And the next one, blue and right, the 10,000 dots of 100 cross 100. Right, 100 cross 100. 10,000 dots of 100 cross 100 square grids are all colored blue. Rekha can paint some of them red, but there must always be a blue dot on the line segment between any two red dots, right? What is the largest number of dots we can dot image given है आपके पास जो? Yes, please. Anyone? कोई thought process? एक अच्छा thought process? Anyone? सर हम्म सर मैंने इसमें क्या सोचा कि मैं 3 by 3 का एक ग्रिड लेता हूँ हम्म और उसके चारों कॉर्नर्स को रेड मार्क कर देता हूँ। 3 by 3 का लेके ओके हाँ सर। सभी को मैंने रेड मार्क कर दिया। चलो मान लेता हूँ यही 3 by 3 का फर्स्ट वाले को ही मैंने ले लिया बेटा। वेरी गुड। सर कॉर्नर मतलब चार कॉर्नर्स, सर चार कॉर्नर्स। चार कॉर्नर। ओके। फिर सर हमें 10 by 10 है ना सर, ये तो 100 क्रॉस 100। सर ये तो यहाँ पे सर 6 ही है। ऐसे और बनाया था। मैं तो जस्ट अपने इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। फिर सर हम लोग एक पूरा 3 छोड़ देंगे, हम्म मतलब एक 1 into 3 सीधा। ओके और सर फिर से 3 by 3 लेंगे और उसके चारों कॉर्नर्स पे मार्क कर देंगे। ओके। फिर सर फिर से हम लोग 1 3 छोड़ देंगे हाँ हाँ और हाँ 3 by 3 हम चार में जाएंगे। वेरी गुड। तो कितने होंगे टोटल? फिर सर हम जब हम नीचे जाएंगे, हम्म क्या सर? यस। टोटल कितने आ रहे हैं फिर? हाउ मेनी वी आर गेटिंग इन दिस? आवाज बहुत कट रहा है। ओके जस्ट
गेटिंग माय वॉइस? विजय, Yes. आवाज आ रही Yes. है? ओके, यस श्रेयस, वेरी गुड पॉइंट, मतलब बात तो अच्छी लग रही है बेटा। तो सर हमें ऐसा 25 3x3 मिलेंगे और 25 1x3। ओके, तो सर हमें हर एक 3x3 में 4 रेड डॉट्स मिल रहे हैं। तो सर हमें 100 डॉट्स मिलेंगे जब हम एक पूरा कंप्लीट करेंगे साइकिल। देखो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग पहले रीड करें। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर ये दो, अगर मैं 2x2 ही लूं, मैं 3x3 पे नहीं जा रहा हूँ, 2x2 लूं, ये मेरे लिए परमिसेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड हो गए, राइट। या फिर ऐसा भी केस होगा तो ये भी मेरे लिए, राइट, परमिसेबल नहीं है, ये भी मेरे रॉन्ग हो गए। ये दोनों केस मेरे साथ में रॉन्ग हो जा रहे हैं। मतलब 2x2 में कभी भी मेरे पास कोई भी पॉइंट दो लेना हमारे लिए पॉसिबल रहेगा ही नहीं। नहीं, अगर 2x2 में मेरे पास है तो कभी भी मेरे लिए ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि मैं दो पॉइंट को ले सकूं एक साथ में। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे मेरे पास ये हम लोगों ने लेके रखा हुआ था, वेरी गुड, तो 2x2 को अगर मैं छोड़ता जाऊं, जैसे यहां पर आपके एक 2x2 बने हुए हैं, सरेज ने बड़ा अच्छा काम किया, वो 3x3 में उन्होंने किया। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं 2x2, कैन वी सी दिस की 2x2 का कोई भी मैं ले रहा हूं उसमें मैं पॉइंट नहीं ले सकता। फिर उसके बाजू वाला में जैसे आया मैं, तो मैं इसमें 2x2 जो ले रहा हूं वो उसके बाजू वाला में एक रेड कर दिया, राइट। उसके बाजू वाला में हमारे पास यहां था, राइट, उसमें हमने एक ले लिया। तो हर एक 2x2 में, मतलब हर एक मैं कहूं तो 4 जो हमारे पास है उसमें 1 2 3 4 में एक रेड मैं कर पाया। फिर इधर से मैं करूं तो एक ही रेड मैं कर पाया, इधर से मैं 4 करूं तो एक रेड कर पाया, ये हमारे पास चलता जाता है, राइट। इज दिस ओके? क्या ये सही है? यस सर। राइट। सो कितने ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं डॉट्स, अब सोच के बताओ। आपके पास 100 ऐसे हैं, 100x100 हैं, तो 100 हैं इस तरफ और इधर भी 100 है, और आपको हर एक में हमेशा 2x2 में एक एक मिस करते जाने। तो कितने मैं यहां पर, राइट, अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक 4 में से हाफ मेरे को मिस करने पड़ रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ। So 2500. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। मतलब यहां से मेरे को 50 पिक करने पड़े, यहां से 50, मतलब 50 × 50। वेरी गुड सेमिल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, यू गॉट द पॉइंट। सिंपल था नहीं प्रसम? दिस वाज सिंपल, नहीं? Sir, but how do we know that like all the dots have like what if a line does not cross a blue dot? See, by the symmetricity, I'm doing this. Maximum number of dots, what Rekha can put. So for maximum, I'm going this, and we know that, as I said, कि in any of this 4 collection, right, this is possible only, right, 1 dot I can take. But if I'm going for dots 1 2 3 4 5 6 7 8, so I'll not go for this dot. Why not go for this dot? Why not go for this dot? तो बहुत This will not give you the maximum number of dots. This will give you the minimum number of dots, because when I'm going for this dot, 100% I can't take any of this on this, on this, on this. Right. So that's the reason when I have to maximize, just I have to go with all 2x2, and the corner one I can always pick. So maximum number of dots I can take in the column, and in the row it's 50 and 50. So total number of maximum will be 2500. Is this okay? Yes. Is this okay? Now, Yes, sir. Yes. this question is like, all you have to explain this one. A, B, C, and D be integers, right? Prove that A minus B, A minus C, A minus D, B minus C, B minus D, and C minus D is divisible by
12. This was the simplest question, but obviously the divisibility case you have to handle. Dhaval, Vaishnavi, Aryan, anyone? Sir, in this one, we have to use pigeonhole principle. Oh, very good. How you are using pigeonhole? Zeal. सर क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे 3 ही रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 0 1 2। तो सर जब 2 रिमाइंडर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर किसी ना किसी का सब्ट्रैक्शन में 0 आ ही जाएगा। तो मुझे 3 का तो समझा, पर मुझे नहीं समझा 4 को कैसे प्रूफ करूंगा इसमें। So there will always be two pairs of numbers which are always have Okay, the difference as 0. not bad, 1 to 2. not bad. थोड़े और कोई? प्रसन्न, एबीजे, अनुष्का, जील। सर मेरे को एक आइडिया है लेकिन मैं ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम भी बहुत कमी था, मेरे को उस पर 100% भरोसा नहीं था। क्या आइडिया है बेटा? सर इन्होंने बोला कि हम लोग को 12 से डिवाइड करना है, मतलब हम लोग को 3 2 और 2 के साथ देखना होगा। तो Good. क्योंकि हम लोग 2 से डिविजिबल प्रूफ कर देंगे तो 4 से डिविजिबल प्रूफ नहीं होगा, तो हमको 4 के साथ जाना चाहिए। अब Okay. ए बी सी डी जो चारों नंबर है उनके जितने पॉसिबिलिटीज है कि कौन सा ऑड होगा कौन सा इवन होगा हमने सारे नोट डाउन कर लिए। और उसके बाद हर एक केस बाई केस सर हम लोग जाते गए कि 3 से कौन सा डिविजिबल होगा, 1 या 2 तो आ ही जाएंगे और 4 के साथ भी वही सेम हो जाएगा। मैथमेटिकल में कैसे ला? वेरी गुड, गुड थॉट। ये तो बिल्कुल सही थॉट जा रहा है कि एक बार ये आपको पता चल जाएगा ना कि इसको मैथमेटिकल कैसे लाते हैं, तो बहुत सारे आगे के क्वेश्चन हम लोगों के लिए सिंपल हो जाएंगे। राइट, तो इसको मैथमेटिकल कैसे लाऊं मैं? इस बात को थॉट तो बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर ऐसा काम हो गया तो काम बन जाएगा। सर हम लोग बोल सकते हैं कि हर नंबर इधर 0 या 1 mod 2 होगा। ओके। तो सर अगर इसमें अगर 2 इवन निकल गए सो सर सी इधर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। अगर 2 इवन निकल गए तो ऐसे ही लाइक 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर एक ऑड है 3 इवन है तो भी 4 से हो जाएगा। अगर 3 ऑड है 1 इवन है तो फिर 1 + 1 2 होके फिर वापस डिवाइड हो जाएगा वो। तो 4 से आ ही रहा था। ओके, मीन्स यू आर सेइंग कि दिस इज 1 mod 2 होगा और जितने भी ऑड वाले हैं, और ये 0 mod 2 होगा। हाँ सर। Right? And now these two are the baskets, right? These two are the baskets. This is called pigeonhole principle, right? These two are the baskets, and in these baskets, I have to put A, B, C, and D. First case, like if I'm saying कि A, B, C, D all are in the even or odd, right? तो ये वाले केस में तो मेरे काम ही बन गए, क्योंकि अगर ऑड है, ऑल आर ऑड या ऑल आर इवन की बात मैं करूं तो हमेशा मेरे को डिफरेंस जो है वो इवन मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 ये डिविजिबल है। So I have to go for the minimum one, right? If I'm able to do this in the minimized case, like AB and CD, right? AB and CD. So if I'm saying that 2 of the numbers are odd, 2 of the numbers are even, the extreme case will be this one only, right? So A minus B will be even, right? A minus C will be odd. A minus D will be again odd. B minus C will be again odd, right? B minus D is again odd, but C minus D is even. So 2 even numbers are coming on this. If I'm taking the extreme case, 2 are even, 2 are odd, right? So this product will be always divisible by 4. Is this okay? Right? Yes. Now, the second case, we have to prove that this number must be divisible by 3. Right? We have 4 numbers, right? And again, I'm going with the basket of what? First is 3n plus 1. Second is 3n plus 2. Third is 3n plus 3. In these 3 baskets, right? If 2 numbers are coming in one basket, means the difference will be always divisible by 3. मान लो मैं बोल रहा हूं कि 2 नंबर A and B यहां से,
तो एक नंबर मेरे पास 3n+1 का फॉर्म होगा, दूसरा नंबर मेरे पास 3m+1 का फॉर्म होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वो m-n 3 से डिविजिबल होगा, मींस नंबर तो वो डिविजिबल होगा ही, राइट। अब पिजन होल से क्या बोला जाएगा कि मैं बोला एक ए इसको दिया, एक बी इसे दिया, एक सी से दिया, बट वी आई हैव वन मोर one नंबर, extra. So one pigeon will go into right? one hole. So in the hole, the next pigeon will go in this pigeon hole. So any of one will contain this D. So 100% this must be divisible by 3 also. And 3 and 4 both are co-prime. So I can say the number is divided by 3 into 4, that's 12. Is this okay? Yes, sir. ऐसे ही किया. Very good. Very good. I did divisibility by 3 by proper pigeonhole, but I did 4 by just bashing the cases. Okay. So you understand that the pigeonhole is very effective method, right? We will be able to just like solve most of the question by pigeonhole, right? So just we have to develop this. That's the reason I have given this question. While discussion and all, you'll get to know exactly how to use this thing, right? But now the set of the question, what was given in this was 2 divides. आप पिजन होल पढ़ाओगे क्या? हाँ बेटा, वो तो पढ़ेंगे अलग से ना, सब कुछ पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? मैंने सुना है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी, मैं ये सब जैसे बताया आज ना, फर्स्ट टाइम ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पिजन होल बताया, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, धीरे धीरे करके पहले इसके बेस बनाता जाऊंगा ना, उसके बाद जब पिजन होल आएगा तो लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल सा सिंपल सा काम है जो हम लोग कर सकते हैं, राइट। ये 3 क्वेश्चन पहले हम लोग काम कर रहे हैं, ये 3 पर 2 डिवाइड्स दिस फर्स्ट, 4 divides this, and third is this one, right? तो मैंने किया है, मैं आपको बताऊं क्या? एकदम 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 यही डिस्कशन तो चाहिए। सबसे अच्छा क्या स्टेज होता है पता है? सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, मैं केवल सर, just आपको वॉच करता रहूं कि उस पर हम बात कर सकें, राइट। गो फॉर द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास है कि अगर 2 डिवाइड जे स्क्वायर माइनस ए है, तो हम लोग के पास क्या ए आइदर ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। अगर ए ऑड है तब भी ए स्क्वायर ऑड है, और ए इवन है तब भी ए स्क्वायर इवन है। इवन माइनस इवन भी इवन होता है, और ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है। देयरफॉर फर्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 2। वेरी गुड। सी फर्स्ट वाले को एक बार फिर से देखते हैं। और कोई कुछ इस पे देना चाहोगे डायलॉग? Sir, simply we can just say A and A square share the same parity, so then it will always be. और सर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए कैन बी रिटन एज ए माइनस 1 इंटू ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive numbers is always divisible by 2। इज दिस ओके? वेरी गुड। number is divisible by 1 into 2 नंबर के प्रोडक्ट है, 1 into 2 से दैट विल बी डिविजिबल। एंड सिमिलरली भी जो बोला बिल्कुल सही बात, ए स्क्वायर एंड ए हैविंग सेम पैरिटी, ए स्क्वायर एंड ए हैविंग सेम पैरिटी, राइट। अगर ए ऑड है तो ए स्क्वायर भी ऑड होगा, अगर ए इवन है तो ए स्क्वायर भी इवन होगा। तो दोनों हमारे या तो ऑड होंगे या दोनों हमारे इवन होंगे। तो 100% दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय। ओके एवरीवन? जब 4 डिवाइड्स ए 4 माइनस ए आता है तब थोड़ा सा लेंदी होना चालू करता है। देखते अब हम हैं। क्या करेंगे सर, ए को वी विल टेक, इफ ए इज इवन वी विल टेक ए इज इक्वल टू 2n। तो 2n के अंदर भी एक केस आता है कि n जो है वो इवन है, और दूसरा आता है कि n जो है वो ऑड है। तो जब पहला केस देखा कि n इवन है, वी विल गेट 2n इंटू 8n³ माइनस 1। और सिंप्लीफाई करने पे हम लोग को मिल गया 16n⁴ माइनस 2n। तो ओके यहाँ पे हम लोग देखे कि n हम लोग का इवन है, मतलब कि 2n में एक एक्स्ट्रा 2 का फैक्टर है, और 16n के 4 ऑलरेडी 4 से डिविजिबल है। मतलब कि इस केस में जो नंबर a⁴ माइनस a है वो 4 से डिविजिबल है। फिर हमने देखा कि n इक्वल टू ऑड है, तो हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे 2n+1। 2n+1 के साथ हम लोग को फिर से मालूम पड़ता है सर कि क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं
वो उसके अंदर डिक्री मतलब इंक्रीज हो जा रहा है और बैलेंस आउट हो जा रहा है, लाइक यू कैन से n is odd then 2 to the power 8 n to the power 4 minus n, we can say the expression is 2 into n into 8n cube minus 1. अब if we see at 8n cube minus 1, we can say that this is not even. Okay. Sir, But can I tell what I did? Okay. if चलो. this is not even, this means that 4 will not divide a to the power 4 minus a. Okay. Not bad. Very good. Very good. Any other like? Sir, can I tell my method? Yes. Yes. Please, beta. Sir, so I wrote a raised to 4 minus a as Mhm. a into a cube minus 1, and then we can write it as a into a minus 1 into A a square plus square 1. plus a plus 1. Very good. And then we can easily say that if a is even, a will be equal to 2n. So one of them is even, but is a minus 1 and a square plus a plus 1, both of them are odd. So this statement will be false. Is this okay? Yes, sir. Any other idea? Anyone? Anyone? Any other idea? Anyone? See, this is one of the simple question, right? When we are targeting this as a to the power 4 minus 1 is, right, a cube minus 1, right? So I can write a minus 1, a square plus a plus 1, right? So very good. Now, that's a question of parity, we can say. Like, if a is even, right? So a minus 1 must be odd, and a square plus a plus 1 must be odd, right? So only one number is even and two product of two numbers are odd. So if a is divisible by 2 only, so the product of this number is divisible by 2, right? So this number is divisible by 2, right? Not 4. So maybe this is divisible by, right? Even to honge, but not divisible by 4. Next is 6 divides a cube minus a. ना एक क्रिस्प होना चाहिए मेथड, राइट? ये क्वेश्चन देने का रीजन ही था कि एक क्रिस्प सिंपल मेथड होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. टेक योर टाइम. तो ये तो बहुत इजी है. वेरी गुड. Yes. तो वेरी ये 3 कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एक कॉमन लेके. a a minus And plus 1, a minus 1 and a. and a cube and a have the same parity, so it's divisible by 2. you तो have to 3 consecutive number है always. you have to remember one thing. If 3 consecutive numbers are there, na, this will be always divisible by 1 into 2 into 3. If the number is given, 4 numbers are given, a minus 1, a plus 1, a plus 2. So this number will be divided by 1 into 4 2. factorial. Yeah, very good. Right? And this you have to do 30 divides a to the power 4 minus c. Right? Take your time, everyone. 2 minutes for all of you. Be careful. Done. यस सर, हो गया. Yes, sir. Simple है. अरे वाह. अरे नहीं अभिनव, ये हार्ड नहीं है बेटा. अभी बहुत जाना है हमको बेटा.
चलो धीरे 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 बढ़ेंगे ये। आज अभी एग्जाम दे रहे हैं आपके जो सीनियर वाली बैच है ना, वो सब अभी एग्जाम जो दे रही है वो है बीएमटी के लिए, बर्कली मैथमेटिक्स टूर्नामेंट। मैंने डाला भी था आप लोग के ग्रुप में, राइट? Yes, sir. यू विल नॉट बिलीव, एक अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एंड मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी हमेशा देते ही देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उन क्वेश्चन में एक अलग ही रेंज पे क्वेश्चन है। मैं एक पेपर नहीं होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन उसके एक बार शेयर करूंगा। आप मतलब पढ़ने से पहले हवा ही नहीं लगता कि ये होना क्या है। उसको कम से कम 15-20 मिनट तो देने होते हैं कि उस क्वेश्चन के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं। वो स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आता है कि ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करने जाने। तो वो इंडिया लेवल पर एग्जाम है, और सॉरी मैंने वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम है। क्वेश्चन को तो किया वर्ल्ड लेवल पे था। एग्जाम तो कैसा होगा समझ सकते हो। पूरी जान निकालता है, पूरी जान निकालता है, बट हो जाते हैं धीरे धीरे। सो मैंने क्वेश्चन को किया है, बस इसका एक पार्ट बहुत लेंदी है। इसका बेटा हाँ एक सर, तो ये हो 30 को हम गया, लोग लिख। a⁻4 - 1 हो गया, तो ये हो गया तो a ये A-(a-1) स्क्वायर into माइनस A+1 वन और plus a 1। स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने हाँ, क्या किया कि 30 को 2 × 3 × 5 ले लिया। 2 से तो डिविजिबल होगा ही। 5 के जितने भी केसेस हो सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5, a कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, टिल a कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5, इन सबको लेके चेक किया और मेरे को मिला सर कि सारे केसेस के अंदर a5 - a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। और 3 वाला पार्ट थोड़ा लेंदी था मेरे को। 3n+1, 3n+2 और 3n+3, सर थ्री वो एन करने की पुट जरूरत करके नहीं है। चेक करना पड़ा कि अगर डिविजिबल है या नहीं। Sir, in this question, we already know that a into a+1 and a-1. सर it is We not already just found out it's divisible by 6. वेरी So गुड। just have to check for 5. The forms in 5k+1 and 5k+4 are visibly divisible. So we have to only check for 5k+2 and 5k+3. वाह वाह सिमिल, वाह। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम्म। सर जो a⁻5 - a का यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ रहा है, क्योंकि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का फिफ्थ पावर इज इक्वल टू द सिंगल, वही सिंगल डिजिट नंबर होता है। और अगर हम उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही बचेगा हमेशा, तो 5 से डिविजिबल ही है ये। वेरी गुड। ये और 2 तो दिख रहा है। अगर आप लोगों को ख्याल हो तो आप लोगों ने तो ये पढ़ा था, आप लोगों को तो ये बोलना था सर, a⁴ कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 5, ये भी तो बोल सकते थे। लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ाया था, फर्मा फर्मा लिटिल थ्योरम। a⁻p - 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod p। लेकिन 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 उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का। अब वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी करवा सकता हूँ, बट उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना था, क्वेश्चन कहीं और सॉल्व करना था। सिमिल वेरी गुड, सिमिल ने बड़ा अच्छा उपाय बताया। लेकिन हाँ सर यही थे। सिमिल ने क्या बोला ये सुना? उसने बोला कि सर देखो, ये वाले जो नंबर है ये 1 × 2 × 3 से तो डिविजिबल है ही। अब ये नंबर है जो हमारे पास 30 चाहिए, तो ये तो 6 तो ये आ गए। अगर ये 5 से डिविजिबल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो 6 × 5 30 होना चाहिए। तो इसे 5 से डिविजिबल होने के लिए a² + 1 को कैसे डिविजिबल करें, राइट? तो a² + 1 को 5 से डिविजिबल होने के लिए हमें तो यही लेना है कि 5 से डिविजिबल के लिए 5n+1, 5n+2, 5n+3, 5n+4, 5n+5 वहां से काम कर ले। या फिर सब लोग ध्यान, कोई और कुछ आइडिया देना चाहोगे? एनीवन? धवल, दिया? सर वो सही है, क्योंकि यूनिट डिजिट फिफ्थ पावर हमेशा वही होता है। नॉट बैड बेटा, नॉट बैड, मतलब काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। बट मैं क्या चाह रहा था, राइट, वो उस ये जो स्टेटमेंट आपका है ना, इस पर हम लोग जल्दी ही आएंगे। ये जो आपने बोला है ना, इस पर हम लोग पूरा चार्ट भी बनाना है, इस पर पूरा काम करेंगे हम लोग। कि हम लोगों को वो देखना पड़ेगा कि कब कब ये डिविजिबल होते हैं, कैसे कैसे डिविजिबल हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या चाहता था, राइट, इस नंबर के लिए देखना ध्यान से, ये ए है, ये a-1 है, ये a+1। ये अंदर जो नंबर है, क्या मैं इसे a² - 4 + 5 लिख सकता हूं? क्या बोलते हो? क्या मैं Yes. अंदर के यस नंबर सर। को a² - 4 + 5 लिख सकता हूं? मैं अच्छा, and अब सर a+2 तो a-2 आ जाएगा।
इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा भैया? फिर 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएंगे तो फाइव हाँ, फैक्टोरियल से 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 से डिविजिबल होगा, एंड उसके बाद जो बच गया वो वैसे भी 5 से डिविजिबल ही होएगा। हाँ तो पिजन वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, पिजन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। प्लस 5 टाइम्स a-1 a+1। सो फर्स्ट ये नंबर तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 से डिविजिबल है, ये सबको समझ में आ गया ना। 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो हमेशा 1 into 3 into 4 into 5 से डिविजिबल। ये 5 into 1 into 2 into 3 से डिविजिबल है तो ये भी 30 से डिविजिबल। तो हमेशा ये नंबर डिविजिबल होंगे ही होंगे। इज दिस ओके? यस एक नंबर, छोटा सा नंबर कितना बड़ा जादू कर जाता है, देखो। राइट? अब लेकिन ये बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि सर, अगर मेरे को a⁴ कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 5, ये होना ही चाहिए। वन 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 a इज नॉट डिविजिबल बाई 5। a 5 का फैक्टर अगर नहीं रखता हो तो हमेशा होगा, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं mod 5, ये हमेशा होगा। डिविजिबल होगा तो दोनों जीरो ही आ जा रहे होंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन डिविजिबल है तब a⁻p−1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod p। p a दोनों को प्राइम्स हैं, ये तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई हुआ था आपके लिए, है? इसको बहुत यूज करने पड़ेंगे आपको। इज दिस ओके? यस बाद की बचे हुए तो जो हमारे पास थे, ई का स्टेटमेंट था, एफ और जी था, ये थोड़े सिंपल बात हो जा रहे थे। लाइक when C divides A and C divides B, then C divides A plus B. Is this true or not? सर इट इज ट्रू। सही है ना? हाँ सर। Always, हाँ सर ऑलवेज। right? ये था E था ना? F स्टेटमेंट मेरे पास था B divides A, then BC divides AC। ये सही है? हाँ सर ये हमेशा ट्रू रहेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? सोच लो एक बार। नहीं सर। अगर C 0 हो गया देन हाँ सी नॉट इक्वल टू 0 ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट? अरे उसी के बाद तो दिया हुआ था क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हुआ था सी नॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही तो दिया था, उसी का हिंट था आपके पास, राइट? ठीक है ना? बट इस बार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा जो इस बार सैटरडे संडे होगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे आप लोगों का ऑपरेशन अधिक चाहिए होगा, क्योंकि इस बार जो हम लोग पढ़ने जाएंगे उसमें फॉर्मेट एंड ऑयलर प्रोटीन फंक्शन दोनों होगा। तो काफी बड़ी रेंज पर हम लोग काम करने जाएंगे, राइट? तो प्लीज, कुछ लोगों के साथ एग्जाम भी चल रहे होंगे, फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एंड उसके बाद बेस ऑफ द नंबर्स हमें करने हैं, तो पहली कोशिश तो ये रहेगी कि हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? इस पेपर में कैसा कैसा आप लोगों का रहा, एक बार अपने अपने क्या क्या, मतलब मैं तो पूरी क्वेश्चन कर दी है, कितने कितने राइट रहे। राइट, मैंने क्वेश्चन कम रखा था इस बार, 5 क्वेश्चन ही आप लोग को दिए थे, बट सोचने के लिए काफी अच्छा जगह था। तो कितने कितने क्वेश्चन किए, कितने हुए आपसे, प्लीज राइट डाउन द चैट। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे संडे अपने से, नेक्स्ट सैटरडे संडे एंड उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग पीटीएम रखने वाले हैं, राइट? पीटीएम में ऑनलाइन कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ऑफलाइन होगा। इस पे हम लोग ना आपके पूरे जो भी आज तक के रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और आगे हम लोग कैसे करना है उस पर भी हर एक इंडिविजुअल पर बात करेंगे। ठीक है ना? ओके एवरीवन। पीटीएम का मतलब वो वाला नहीं होता ना, स्कूल वाला पीटीएम नहीं है, डरना मत। ओके। जील कम क्यों अटेम्प्ट किया? सारी चीजें जिनका आंसर आया था वो। डिविजिबिलिटी वाले आए थे, कौन कौन से दो किया आपने? तो मैंने एक फर्स्ट किया था जो सही हुआ था और एक फोर्थ किया था जो गलत
मतलब मेरी मेथड गलत हो गई। शिफ्ट क्यों नहीं किया? शिफ्ट करना था ना। तो पिजन्स होल आप कब समझाओगे? पिजन होल बेटा आएगा, समय आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है अभी पीएनसी में आएगा वो बेटा, थोड़ा सा टाइम लेंगे उसमें ना। अभिनव फर्स्ट एंड लास्ट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन करना चाहिए था अभिनव आपको, फोर्थ होता। सिमिल 3, विच वन सिमिल? अच्छा, एबीजे 3 करेक्ट, वेरी गुड। अनुष्का, वाह वेरी गुड। श्रेयज कौन सा गड़बड़ हुआ बेटा? सर वो 1/x + 1/y वाला। ओके। Same, sir. फॉर सम 145, वेरी गुड बेटा। ये फिर से एक बार आपको चेक करके देख लेना, राइट। कल हम लोग फिर मिलते हैं। कल हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? फर्मा फॉर्मेट थ्योरम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डिविजिबिलिटी वाले, एंड उसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा, ठीक है ना, ऑयलर टोटियन फंक्शन। ओके। किसी की कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज, एनीवन, एनीवन। सर एक से ना ऊपर जा सकते क्या थोड़ा सा? बेटा कहाँ पर? हाँ बस ये सही है सर। हाँ ठीक। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन यही था नहीं? सर सबसे हार्ड था ये। हाँ, हार्ड था ये। सर मुझे सबसे हार्ड यही लगा, और हुआ भी नहीं आखिर में। ठीक है। सर ऐसे ट्राई किया था पर लगा गलत जा रहा हूँ तो फिर सर थोड़ा सा नीचे। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे ही जो हमें कुछ सिखा के जाएंगे, और अभी तो शुरुआत है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के आएंगे ना, नो वरी। ठीक है। हो गया सर। चलो, कल फिर हम लोग मिल रहे हैं ना, कल हम लोग। Sir, I have a doubt. हाँ प्लीज। Sir, so how should we really write in like subjective papers? Like, is there like a proper format? Which यस, like I know it's already discussed and stuff, but यस। like if there is any proper format where we have to like do our steps. So you know, और like इन exams. next test now, I'll do, I'll give the question on this format only, and I'll just write down the solution in the exact format what is required, right? So with the question paper. No, no, no. First, you have to solve the question paper. Then I'll tell you exactly what you have written, or exactly how we have to write this. Okay, sir. So I also say you didn't provide me access to the Google Drive. Why? Just send me a message or something like that. Which question in fifth one? Which जी G? G क्या था? अभी क्या था हम लोगों ने ना? G is सर उसका Because BC divides AC when C is not 0. Yeah, sir, you have done. I didn't see the message. AC. When C is not 0. C is not 0. So we can cancel B out. divides A। This is B by A. सर अगर बीसी और एसी को चेक ए क्यू हाँ, प्लस, सर अगर हम Yes, बीसी sir. बाय एसी को ए क्यू प्लस बी के फॉर्म में लिखे तो बी बाय ए भी ए क्यू प्लस बी के फॉर्म में होगा। मतलब सर वो कोशेंट रूल यूज करके हम्म, बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्म। हाँ। मतलब C is not 0 तो we can divide all this ना। ओके, चलो बाय Yes, sir. बाय, फिर मिलते हैं हम लोग ना। Yes, sir. Just one more thing. यस बेटा। Sir, can you also like if you can you write like in my paper in like paper maybe some improvement points on where like we're lacking on Yes, um I'll give in the PTM only. I'll tell you all this thing ना, yes, in next week. and Yeah, can you also give the PDF for this? you'll get that. Okay. Oh, thank you. थैंक यू सर, बाय सर। Bye bye बेटा। Bye, sir. Bye everyone. Thank you, बाय sir. सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye. सर।